ज्योमेट्री ऑफ Young's double slit experiment. Young's double slits experiment. Double slits experiment. जैसा इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो है एक सोर्स है। ये सोर्स क्या होना चाहिए? मोनोक्रोमैटिक। क्या होना चाहिए? मोनोक्रोमैटिक। क्या होना चाहिए? मोनोक्रोमैटिक का मतलब विच हैव अ सिंगल वेवलेंथ, राइट? सो इन फ्रंट ऑफ हमने क्या किया? एक स्लिट्स लिए। क्या लिया? ये है S1 और ये है S2, राइट? और ये बराबर सेंटर में है। एंड इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है d। क्या है? स्मॉल d। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट S1 एंड S2। मान लीजिए इसके सामने में मैंने एक स्क्रीन लिया। स्क्रीन है और स्क्रीन पे क्या होगा? यहाँ पे ये रेज फॉर्म होगा, ये होगा S1 डैश। क्या होगा? S1 एंड दिस विल बी द S2 डैश। S2 और ये सेंटर है तो इसको पकड़ लीजिए। ये O होगा तो ये क्या होगा? O डैश। क्या होगा? मान लीजिए स्क्रीन पे एक पॉइंट P है जहाँ पे कुछ फ्रिंज मिल रहा है, ब्राइट और डार्क। पकड़ लीजिए। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे ऐसा ड्रॉ किया एक रे और दूसरा रे ड्रॉ किया इस पॉइंट से यहाँ, ठीक है? और आप लोगों को पता है कि जो प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है जहाँ पे फॉल होगा वहाँ पे वो 90 डिग्री सेकेंडरी होगा। क्या होगा? 90 डिग्री। सोर्स एंड स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल D। क्या है? कैपिटल D। ये टोटल D है तो ये क्या होगा? D/2। क्या होगा? D/2। ये भी क्या होगा? यहाँ से ये इतना क्या होगा? D/2 और यहाँ से ये कितना होगा? D/2। Let it will be the from this P point to O dash it will be the y. It will be the अगर यहाँ से यहाँ तक y है तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ से लेकर तो यहाँ तक क्या होगा? y minus d। क्या होगा? y minus d/2। y minus d/2 क्या होगा? y minus d/2। Now and what will be the PS2 dash? PS2 dash it is the y plus d/2। y plus d/2। Now let's start its geometry. We have to find the path difference. You have to find the path difference. मेरे को इसका path difference find करना है। path difference बोले तो जो bright fringe है और dark fringe है, bright fringe और dark fringe के बीच का जो distance है वो क्या होगा? वो क्या होगा? ये मेरे को निकालना है। समझ में आया? तो let it be in triangle. See in triangle S1 dash P, S1 dash P, एंगल S1 dash P कितने डिग्री का है? कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। Therefore by Pythagoras theorem क्या होगा बेटा? PS1 मेरे को यहाँ पे निकालना क्या है? S2P minus S1P। बोले तो दिस इज द पार्ट डिफरेंस। दिस इज द S2P minus S1P निकालना है। क्या निकालना है? S2P minus S1P। Now see in triangle S1 dash P, this will be the 90 degree. It means that we have to apply the Pythagoras theorem. You have to apply the Pythagoras theorem. क्या अप्लाई करोगे? Pythagoras theorem. See carefully.
h1 dash p whole square is equal to h1 dash whole square plus h1 p क्या होगा h1 dash p whole square p. Now my dear, you have to put the value. You have to put the value. What is the h1 dash? ये d है तो p क्या होगा? t square होगा. ये हो गया t square plus h1 dash p क्या है मेरे पास? y minus d by 2 का whole square. y minus d by 2 का whole square. मरका भी इधर ध्यान दे. ये होगा d square plus y square minus 2 into y into d by 2 plus d square by 4. d square by 4 to get answer. So क्या होगा d square plus y square minus y d plus d square by 4. d square by 4. तो ये क्या होगा h1p का whole square. क्या होगा h1p का whole square. Are you getting this one? Are you getting? This is the equation number first. This is the equation number first. Now we have to apply this formula in triangle h2 dash p. Angle h2 dash p is equal to 90 degree. Is equal to 90 degree. Is that clear? Therefore, by Pythagoras theorem, apply Pythagoras theorem. क्या होगा? h2p का whole square is equal to क्या होगा बेटा? h2 dash का whole square plus p(h2 dash) क्या होगा? या h2p dash का whole square. Now what to do? You have to put the value. You have to put the value. Value put करने के बाद क्या होगा? h2p का whole square is equal to क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? d square. क्या होगा? d square. और ये क्या होगा? y plus d by 2 का whole square. p(h2 dash) क्या है? h2 dash p क्या है? y plus d by 2 है. क्या है? y plus d by 2 का whole square. यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग. Now we have to apply the formula a plus b का whole square. a plus b का whole square. क्या होगा? h2p का whole square क्या होगा? d square plus y square plus 2y into d by 2 plus d square by 4. d square by 4. This is the equation number second. This is the equation number second. What do you want to find? h2p minus h1p. What do you want to find? h2p minus h1p. So my dear, see, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे हम. सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट क्या करेंगे? माइनस. क्या होगा? h2p का होल स्क्वायर माइनस h1p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? d स्क्वायर प्लस yd प्लस d स्क्वायर बाय 4 माइनस माइनस d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर माइनस इनटू माइनस प्लस yd प्लस माइनस d square by 4. d square by 4. What will be the cancel? What will be the cancel? d square by 4. d square by 4. d square. My dear, do you know a square minus b square? a square minus b square. a plus b, a minus b. a plus b, a minus b. So it will be the h2p minus h1p plus h2p plus h1p इज इक्वल टू क्या होगा? ट्वाइस yd. क्या होगा? ट्वाइस yd. ट्वाइस yd होगा ना? सो माय डियर क्या होगा? ये प्लस ये मल्टीप्लाई तो क्या होगा? डिवाइड. बोले तो h2p minus h1p इज इक्वल टू ट्वाइस yd अपॉन h2p plus h1p. Let it be h2p and h1p somewhat d, कैपिटल D. क्या होगा? कैपिटल D. बोले तो h2p minus h1p इज इक्वल टू क्या होगा? ट्वाइस yd अपॉन कैपिटल D प्लस कैपिटल. ये लेना है, ये बात यहाँ ना होने के बावजूद यहाँ लेना है. तो d प्लस d क्या होगा?
H2P H1P is equal to twice YD upon twice D upon 2 to get क्या होगा बेटा, जो मेरा पाथ डिफरेंस आया वो क्या है, H2P माइनस H1P इज इक्वल टू YD अपॉन कैपिटल D, YD अपॉन समझ में आया। दिस इज द एक्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑफ द ज्योमेट्री आर यू गेटिंग दिस वन। इसके ऊपर से आप उसका पाथ डिफरेंस, आप उसका फेज डिफरेंस, आप उसका फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या हुआ, फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या हुआ, फ्रिंज विड्थ मींस ब्राइट पॉइंट का डिस्टेंस, डार्क पॉइंट का डिस्टेंस आप इजीली निकाल सकते हो।